بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے کہ شاید تم لوگوں کو عقل آ جائے۔ پیغمبر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی اس قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اگرچہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے بے خبر لوگوں میں تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ بابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور آفتاب و مہتاب کو دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ یہ سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ بیٹا، خبردار اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ لوگ الٹی سیدھی تدبیروں میں لگ جائیں گے کہ شیطان انسان کا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی تعویل سکھائے گا اور تم پر اور یعقوب کی دوسری اولاد پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، جس طرح تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر تمام کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی ابن یامین ہمارے باپ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہماری ایک بڑی جماعت ہے، یقیناً ہمارے ماں باپ ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں، تم لوگ یوسف کو قتل کر دو یا کسی زمین میں پھینک دو تو باپ کا رخ تمہاری ہی طرف ہو جائے گا اور تم سب ان کے بعد صالح قوم بن جاؤ گے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ ان لوگوں نے یعقوب سے کہا کہ بابا، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان پر شفقت کرنے والے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ کھائے پیے اور کھیلے، اور ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہی ہیں۔ یعقوب نے کہا، مجھے اس کا لے جانا تکلیف پہنچاتا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل ہی رہ جاؤ۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم سب اس کے بھائی ہی ہیں تو ہم بڑے خسارہ والوں میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب وہ سب یوسف کو لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کر دی کہ عنقریب تم ان کو اس سازش سے باخبر کرو گے اور انہیں خیال بھی نہ ہوگا، اور وہ لوگ رات کے وقت باپ کے پاس روتے پیٹتے آئے، کہنے لگے، بابا ہم دوڑ لگانے چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو ایک بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ اور یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے کہا کہ یہ بات صرف تمہارے دل نے گڑھی ہے، لہذا میرا راستہ صبر جمیل کا ہے اور اللہ تمہارے بیان کے مقابلے میں میرا مددگار ہے۔ اور وہاں ایک قافلہ آیا جس کے پانی نکالنے والے نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو آواز دی، ارے واہ، یہ تو بچہ ہے، اور اسے ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور ان لوگوں نے یوسف کو معمولی قیمت پر بیچ ڈالا، چند درہم کے عوض، اور وہ لوگ تو ان سے بیزار تھے ہی۔ اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا، اور تاکہ اس طرح انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے، اور اللہ اپنے کام پر غلبہ رکھنے والا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کر دیا کہ ہم
इसी तरह नेक अमल करने वालों को जजा दिया करते हैं। और इसने इनसे इजहार मोहब्बत किया जिसके घर में यूसुफ रहते थे, और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, लो आओ। यूसुफ ने कहा कि माज़ अल्लाह, वो मेरा मालिक है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है, और जुल्म करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। और यकीनन उस औरत ने इनसे बुराई का इरादा किया, और वो भी इरादा कर बैठते अगर अपने रब की दलील ना देख लेते। ये तो हमने इस तरह का इंतजाम किया कि इनसे बुराई और बदकारी का रुख मोड़ दे कि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। और दोनों ने दरवाजे की तरफ सबकत की, और इसने इनका कुर्ता पीछे से फाड़ दिया, और दोनों ने इसके सरदार को दरवाजे ही पर देख लिया। इसने घबराकर फरियाद की, जो तुम्हारी औरत के साथ बुराई का इरादा करे, इसकी सजा इसके अलावा क्या है कि इसे कैदी बना दिया जाए या इस पर दर्दनाक अजाब किया जाए। यूसुफ ने कहा कि इसने खुद मुझसे इजहार मोहब्बत किया है, और इस पर इसके घर वालों में से एक गवाह ने गवाही भी दे दी कि अगर इनका दामन सामने से फटा है तो वो सच्ची है और ये झूठों में से है, और अगर इनका कुर्ता पीछे से फटा है तो वो झूठी है, ये सच्चों में से है। फिर जो देखा कि इनका कुर्ता पीछे से फटा है तो उसने कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है, तुम्हारा मकर बहुत अजीम होता है। यूसुफ, अब तुम इससे एराज करो, और जुलेखा, तू अपने गुनाह के लिए इस्तगफार कर कि तू खताकारों में है। और फिर शहर की औरतों ने कहना शुरू कर दिया कि अजीज मिस्र की औरत अपने जवान को अपनी तरफ खींच रही थी और इसे इसकी मोहब्बत ने मदहोश बना दिया था। हम ये देख रहे हैं कि ये औरत बिल्कुल ही खुली हुई गुमराही में है। फिर जब जुलेखा ने इन औरतों की मक्कारी और तशहीर का हाल सुना तो बुला भेजा और इनके लिए पुरतकल्लुफ दावत का इंतजाम करके मसनद लगा दी और सबको एक एक छुरी दे दी, और यूसुफ से कहा कि तुम इनके सामने से निकल जाओ। फिर जैसे ही इन लोगों ने देखा तो बड़ा हसीन व जमील पाया और अपने हाथ काट डाले और कहा कि माशाअल्लाह, ये तो आदमी नहीं है बल्कि कोई मोहतरम फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा कि यही वो है जिसके बारे में तुम लोगों ने मेरी मलामत की है, और मैंने इसे खींचना चाहा था कि ये बचकर निकल गया, और जब मेरी बात नहीं मानी तो अब कैद किया जाएगा और जलील भी होगा। यूसुफ ने कहा कि परवरदिगार, ये कैद मुझे इस काम से ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये लोग दावत दे रही हैं, और अगर तू इनके मकर को मेरी तरफ से मोड़ ना देगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो सकता हूं और मेरा शुमार भी जाहिलों में हो सकता है। तो इनके परवरदिगार ने इनकी बात कबूल कर ली और इन औरतों के मकर को फेर दिया कि वो सबकी सुनने वाला और सबका जानने वाला है। इसके बाद इन लोगों को तमाम निशानियां देखने के बाद भी ये ख्याल आ गया कि कुछ मुद्दत के लिए यूसुफ को कैदी बना दें, और कैद खाने में इनके साथ दो जवान और दाखिल हुए। एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने को शराब नचोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां लादे हूं और परिंदे इसमें से खा रहे हैं। जरा इसकी तावील तो बताओ कि हमारी नजर में तुम नेक किरदार मालूम होते हो। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको दिया जाता है वो न आने पाएगा और मैं तुम्हें ताबीर बता दूंगा। ये ताबीर मेरे परवरदिगार ने बताई है, और मैंने इस कौम के रास्ते को छोड़ दिया है जिसका ईमान अल्लाह पर नहीं है और वो रोज आखिरत का भी इनकार करने वाली है। मैं अपने बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के तरीके का पैरू हूं। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं किसी चीज को भी खुदा का शरीक बनाऊं। ये तो मेरे ऊपर और तमाम इंसानों पर खुदा का फजल करम है, लेकिन इंसानों की अक्सरियत शुक्र खुदा नहीं करती है। मेरे कैद खाने के साथियों, जरा ये तो बताओ कि मुतफर्रिक किस्म के खुदा बेहतर होते हैं या एक खुदाए वाहिद क़हार? तुम उस खुदा को छोड़कर सिर्फ इन नामों की परस्तिश करते हो जिन्हें तुमने खुद रख लिया है या तुम्हारे आबाओ अजदाद ने। अल्लाह ने इनके बारे में कोई दलील नाजिल नहीं की है, जबकि हुक्म करने का हक सिर्फ खुदा को है, और उसी ने हुक्म दिया है कि उसके अलावा किसी की इबादत ना की जाए, कि यही मुस्तहकम और सीधा दीन है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हैं। मेरे कैद खाने के साथियों, तुमसे एक अपने मालिक को शराब पिलाएगा और दूसरा
सूली पर लटका दिया जाएगा और परिंदे इसके सर से नोच नोच कर खाएंगे। ये इस बात के बारे में फैसला हो चुका है जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे हो। और फिर जिसके बारे में ख्याल था कि वो निजात पाने वाला है, इससे कहा कि जरा अपने मालिक से मेरा भी जिक्र कर देना। लेकिन शैतान ने इसे मालिक से जिक्र करने को भुला दिया और यूसुफ चंद साल तक कैद खाने ही में पड़े रहे। और फिर एक दिन बादशाह ने लोगों से कहा कि मैंने ख्वाब में 7 मोटी गायें देखी हैं, जिन्हें 7 पतली गायें खाई जा रही हैं, और 7 हरी ताजी बालियां देखी हैं और 7 खुश्क बालियां देखी हैं। तुम सब मेरे ख्वाब के बारे में राय दो, अगर तुम्हें ख्वाब की ताबीर देना आता हो तो। इन लोगों ने कहा कि ये तो एक ख्वाब परेशान है और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर से बाखबर नहीं हैं। और फिर दोनों कैदियों में से जो बच गया था और जिसे एक मुद्दत के बाद यूसुफ का पैगाम याद आया, इसने कहा कि मैं तुम्हें इसकी ताबीर से बाखबर करता हूं, लेकिन जरा मुझे भेज तो दो। यूसुफ, ए मर्द सिद्दीक, जरा इन 7 मोटी गायों के बारे में जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियों और 7 खुश्क बालियों के बारे में अपनी राय तो बताओ। शायद मैं लोगों के पास बाखबर वापस जाऊं तो शायद इन्हें भी इल्म हो जाए। यूसुफ ने कहा कि तुम लोग 7 बरस तक मुसलसल ज़राअत करोगे, तो जो गल्ला पैदा हो इसे बालियों समेत रख देना, अलावा थोड़ी मिकदार के जो तुम्हारे खाने के काम में आए। इसके बाद 7 सख्त साल आएंगे जो तुम्हारे सारे जखीरों को खा जाएंगे, अलावा इस थोड़े माल के जो तुमने बचा कर रखा है। इसके बाद 1 साल आएगा जिसमें लोगों की फरियाद रसी और बारिश होगी और लोग खूब अंगूर नचोड़ेंगे। तो बादशाह ने यह सुनकर कहा कि जरा इसे यहां तो ले आओ। बस जब नुमाइंदा आया तो यूसुफ ने कहा कि अपने मालिक के पास पलट कर जाओ और पूछो कि इन औरतों के बारे में क्या ख्याल है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे, कि मेरा परवरदिगार इनके मकर से खूब बाखबर है। बादशाह ने इन औरतों से दरियाफ्त किया कि आखिर तुम्हारा क्या मामला था जब तुमने यूसुफ से इज़हार ताल्लुक किया था। इन लोगों ने कहा कि माशा अल्लाह, हमने हरगिज इनमें कोई बुराई नहीं देखी। तो अजीज मिस्र की बीवी ने कहा कि अब हक बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि मैंने खुद इन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी और वो सादिकीन में से हैं। यूसुफ ने कहा कि यह सारी बात इसलिए है कि बादशाह को यह मालूम हो जाए कि मैंने इसकी अदम मौजूदगी में कोई खयानत नहीं की है, और खुदा खयानतकारों के मकर को कामयाब नहीं होने देता। और मैं अपने नफ्स को भी बरी नहीं करार देता कि नफ्स बहरहाल बुराइयों का हुक्म देने वाला है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे कि वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और बादशाह ने कहा कि जरा इन्हें ले आओ, मैं अपने जाती उमूर में साथ रखूंगा। उसके बाद जब इनसे बात की तो कहा कि तुम आज से हमारे दरबार में बावकार अमीन की हैसियत से रहोगे। यूसुफ ने कहा कि मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दो कि मैं मुहाफिज भी हूं और साहिब इल्म भी। और इस तरह हमने यूसुफ को जमीन में इख्तियार दे दिया कि वो जहां चाहे रहें। हम अपनी रहमत से जिसको भी चाहते हैं मर्तबा दे देते हैं और किसी नेक किरदार के अज्र को जाया नहीं करते। और आखिरत का अज्र तो इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो साहिबान ईमान हैं और खुदा से डरने वाले हैं। और जब यूसुफ के भाई मिस्र आए और यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने सबको पहचान लिया और वो लोग नहीं पहचान सके। फिर जब इनका सामान तैयार कर दिया तो इनसे कहा कि तुम्हारा एक भाई और भी है, इसे भी ले आओ। क्या तुम नहीं देखते हो कि मैं सामान की नाप तोल भी बराबर रखता हूं और मेहमान नवाजी भी करने वाला हूं। अब अगर इसे ना ले आए तो आइंदा तुम्हें भी गल्ला ना दूंगा और ना मेरे पास आने पाओगे। इन लोगों ने कहा कि हम इसके बाप से बातचीत करेंगे और जरूर करेंगे। और यूसुफ ने अपने जवानों से कहा कि इनकी पूंजी भी इनके सामान में रख दो, शायद जब घर पलट कर जाएं तो इसे पहचान लें और इस तरह शायद दोबारा पलट कर जरूर आए। अब जो पलट कर बाप की खिदमत में आए और कहा कि बाबाजान, आइंदा हमें गल्ले से रोक दिया गया है,
लिहाजा हमारे साथ हमारे भाई को भी भेज दीजिए ताकि हम गल्ला हासिल कर लें, और अब हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। याकूब ने कहा कि हम इसके बारे में तुम्हारे ऊपर इसी तरह भरोसा करें जिस तरह पहले इसके भाई यूसुफ के बारे में किया था। खैर, खुदा बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। फिर जब इन लोगों ने अपना सामान खोला तो देखा कि इनकी बाजार कीमत वापस कर दी गई है, तो कहने लगा, बाबा जान, अब हम क्या चाहते हैं, ये हमारी पूंजी भी वापस कर दी गई है। अब हम अपने घर वालों के लिए गल्ला जरूर लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक ऊंट का बार और बढ़वा लेंगे कि ये बात इसकी मौजूदगी में आसान है। याकूब ने कहा कि मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि खुदा की तरफ से अहद ना करोगे कि इसे वापस जरूर लाओगे, मगर यह कि तुम ही को घेर लिया जाए। इसके बाद जब इन लोगों ने अहद कर लिया तो याकूब ने कहा कि अल्लाह हम लोगों के कौल व करार का निगरां और जामिन है। और फिर कहा कि मेरे फर्जंदो, देखो, सब एक दरवाजे से दाखिल न होना और मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल होना कि मैं खुदा की तरफ से आने वाली बलाओं में तुम्हारे काम नहीं आ सकता। हुक्म सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और उसी पर मेरा एतमाद है और उसी पर सारे तवक्कुल करने वालों को भरोसा करना चाहिए। और जब वो लोग इसी तरह दाखिल हुए जिस तरह इनके वालिद ने कहा था, अगरचे वो खुदाई बला को टाल नहीं सकते थे, लेकिन ये एक ख्वाहिश थी जो याकूब के दिल में पैदा हुई, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया, और हमारे दिए हुए इल्म की बिना पर साहिब इल्म भी थे, अगरचे अक्सर लोग इस हकीकत से भी नावाकिफ थे। और जब वो लोग यूसुफ के सामने हाजिर हुए तो उन्होंने अपने भाई को अपने पास पनाह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, लिहाजा जो बर्ताव ये लोग करते रहे हैं अब इसकी तरफ से रंज ना करना। इसके बाद जब यूसुफ ने इनका सामान तैयार करा दिया तो प्याले को अपने भाई के सामान में रखवा दिया। इसके बाद मनादी ने आवाज दी कि काफले वालों, तुम सब चोर हो। इन लोगों ने मुड़कर देखा और कहा कि आखिर तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है। मुलाजमीन ने कहा कि बादशाह का प्याला नहीं मिल रहा है और जो इसे लेकर आएगा इसे एक ऊंट का बार गल्ला इनाम मिलेगा और मैं इसका जिम्मेदार हूं। इन लोगों ने कहा कि खुदा की कसम, तुम्हें तो मालूम है कि हम जमीन में फसाद करने के लिए नहीं आए हैं और ना हम चोर हैं। मुलाजमों ने कहा कि अगर तुम झूठे साबित हुए तो इसकी सजा क्या है। इन लोगों ने कहा कि इसकी सजा खुद वो शख्स है जिसके सामान में से प्याला बरामद हो। हम इसी तरह जुल्म करने वालों को सजा देते हैं। इसके बाद भाई के सामान से पहले दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी ली और आखिर में भाई के सामान में से प्याला निकाल लिया, और इस तरह हमने यूसुफ के हक में तदबीर की कि वो बादशाह के कानून से अपने भाई को नहीं ले सकते थे, मगर ये कि खुदा खुद चाहे, हम जिसको चाहते हैं इसके दराजात को बुलंद कर देते हैं, और हर साहिब इल्म से बढ़कर एक साहिब इल्म होता है। इन लोगों ने कहा कि अगर इसने चोरी की है तो क्या ताज्जुब है, इसका भाई इससे पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में छुपा लिया और इन पर इजहार नहीं किया। कहा कि तुम बड़े बुरे लोग हो और अल्लाह तुम्हारे बयानात के बारे में ज्यादा बेहतर जानता है। इन लोगों ने कहा कि ए अजीज मिस्र, इसके वालिद बहुत ज़ईफ़ुल उम्र हैं, लिहाजा हम में से किसी एक को इसकी जगह पर ले लीजिए और इसे छोड़ दीजिए कि हम आपको एहसान करने वाला समझते हैं। यूसुफ ने कहा कि खुदा की पनाह कि हम जिसके पास अपना सामान पाएं इसके अलावा किसी दूसरे को गिरफ्त में ले लें और इस तरह जालिम हो जाए। अब जब वो लोग यूसुफ की तरफ से मायूस हो गए तो अलग जाकर मशवरा करने लगे। तो सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बाप ने तुमसे खुदाई अहद लिया है और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कोताही कर चुके हो। तो अब मैं तो इस सरजमीन को ना छोड़ूंगा यहां तक कि वालिद मोहतरम इजाजत दे दें या खुदा मेरे हक में कोई फैसला कर दे कि वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। हां, तुम लोग बाप की खिदमत में जाओ और अर्ज करो
کہ آپ کے फर्जंद ने चोरी की है और हम इसी बात की गवाही दे रहे हैं जिसका हमें इल्म है और हम गैब की हिफाजत करने वाले नहीं हैं। आप इस बस्ती से दरियाफ्त कर लें जिसमें हम थे और इस काफिले से पूछ लें जिसमें हम आए हैं और हम बिल्कुल सच्चे हैं। याकूब ने कहा कि ये तुम्हारे दिल ने एक नई बात गढ़ ली है। मैं फिर भी सब्र जमील इख्तियार करूंगा कि शायद खुदा इन सब को ले आए कि वो हर शय का जानने वाला और साहिब हिकमत है। ये कहकर उन्होंने सबसे मुंह फेर लिया और कहा कि अफसोस है यूसुफ के हाल पर, और इतना रोए कि आंखें सफेद हो गईं और गम के घूंट पीते रहे। इन लोगों ने कहा कि आप इसी तरह यूसुफ को याद करते रहेंगे यहां तक कि बीमार हो जाएं या हलाक होने वालों में शामिल हो जाएं। याकूब ने कहा, मैं अपने हुज़्न और गम और अपनी बेकरारी की फरियाद अल्लाह की बारगाह में कर रहा हूं और उसकी तरफ से वो सब जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। मेरे फर्जंदो, जाओ यूसुफ और इनके भाई को खूब तलाश करो और रहमत खुदा से मायूस न होना कि उसकी रहमत से काफिर कौम के अलावा कोई मायूस नहीं होता है। अब जब वो लोग दोबारा यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि ए अजीज, हमको और हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ है और हम एक हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं। आप हमें पूरा पूरा गल्ला दे दें और हम पर एहसान करें कि खुदा कार खैर करने वालों को जज़ाए खैर देता है। इसने कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ और इनके भाई के साथ क्या बर्ताव किया है जबकि तुम बिल्कुल जाहिल थे। इन लोगों ने कहा कि क्या आप ही यूसुफ हैं? उन्होंने कहा कि बेशक मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया है और जो कोई भी तकवा और सब्र इख्तियार करता है अल्लाह नेक अमल करने वालों के अज्र को जाया नहीं करता है। इन लोगों ने कहा कि खुदा की कसम, खुदा ने आपको फजीलत और इम्तियाज अता किया है और हम सब खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, खुदा तुम्हें माफ कर देगा कि वो बड़ा रहम करने वाला है। जाओ मेरी कमीज लेकर जाओ और बाबा के चेहरे पर डाल दो, इनकी बसारत पलट आएगी और इस मर्तबा अपने तमाम घर वालों को साथ लेकर आना। अब जो काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो इनके पिदरे बुजुर्गवार ने कहा कि मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं, अगर तुम लोग मुझे सटियाया हुआ ना कहो। इन लोगों ने कहा कि खुदा की कसम, आप अभी तक अपनी पुरानी गुमराही में मुब्तला हैं। इसके बाद जब बशीर ने आकर कमीज को याकूब के चेहरे पर डाल दिया तो दोबारा साहिब बसारत हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं खुदा की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। इन लोगों ने कहा कि बाबा जान, अब आप हमारे गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करें, हम यकीनन खताकार थे। उन्होंने कहा कि मैं अनकरीब तुम्हारे हक में इस्तग़फ़ार करूंगा कि मेरा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। इसके बाद जब वो लोग सब यूसुफ के यहां हाजिर हुए तो उन्होंने माँ बाप को अपने पहलू में जगह दी और कहा कि आप लोग मिस्र में इंशाअल्लाह बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ दाखिल हो। और उन्होंने वालिदैन को बुलंद मकाम पर तख्त पर जगह दी और सब लोग यूसुफ के सामने सजदे में गिर पड़े। यूसुफ ने कहा कि बाबा, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है जिसे मेरे परवरदिगार ने सच कर दिखाया है और इसने मेरे साथ एहसान किया है कि मुझे कैद खाने से निकाल लिया और आप लोगों को गांव से निकालकर मिस्र में ले आया, जबकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद पैदा कर चुका था। बेशक मेरा परवरदिगार अपने इरादों की बेहतरीन तदबीर करने वाला और साहिब इल्म और साहिब हिकमत है। परवरदिगार, तूने मुझे मुल्क भी अता किया और ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी दिया। तू जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है और दुनिया और आखिरत में मेरा वली और सरपरस्त है। मुझे दुनिया से फरमाबरदार उठाना और सालेहीन से मुल्हिक कर देना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब गैब की खबरें हैं जिन्हें हम वही के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, वरना आप तो उस वक्त न थे
جب وہ لوگ اپنے کام پر اتفاق کر رہے تھے اور یوسف کے بارے میں بری تدبیریں کر رہے تھے، اور آپ کسی قدر کیوں نہ چاہیں انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تبلیغ رسالت کی اجرت تو نہیں مانگتے ہیں۔ یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک ذکر اور نصیحت ہے، اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں اور کنارہ کش ہی رہتے ہیں، اور ان میں کی اکثریت خدا پر ایمان بھی لاتی ہے تو شرک کے ساتھ۔ تو کیا یہ لوگ اس بات کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ کہیں ان پر عذاب الہی آ کر چھا جائے یا اچانک قیامت آ جائے اور یہ غافل ہی رہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی ہے، اور خدا پاک و بے نیاز ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہی مردوں کو رسول بنایا ہے جو آبادیوں میں رہنے والے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھی کی ہے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، اور دار آخرت صرف صاحبان تقوی کے لیے بہترین منزل ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہاں تک کہ جب ان کے انکار سے مرسلین مایوس ہونے لگے اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے، تو ہماری مدد مرسلین کے پاس آ گئی، اور ہم نے جن لوگوں کو چاہا انہیں نجات دے دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پلٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ یقیناً ان واقعات میں صاحبان عقل کے لیے سامان عبرت ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے گڑھ لیا جائے۔ یہ قرآن پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں ہر شے کی تفصیل ہے، اور یہ صاحب ایمان قوم کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ صدق اللہ